Hello students, in this video I am Kumar going to discuss part 4 of chapter 12 atoms of class 12 physics, in which we will discuss a very important topic, which is different spectral series of hydrogen atom or the line spectra of the hydrogen spectrum, in which we obtain various spectral series various spectral series observed by different were observed by different scientists. So after the names of those scientists, the spectral series, various spectral series of hydrogen atom spectrum are number 1 Lyman series, number 2 Balmer series, number 3 Passon series, number 3 Brackett series and number 5 फंड सीरीज. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस के लिए, जो कि वेरियस वह टॉपिक है वेरियस स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम और द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जिसमें कि 5 टाइप्स के सीरीज ऑब्जर्व किए गए डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा, जिनके उन सीरीज का जिक्र मैंने किया स्टार्टिंग में ही इस वीडियो के. तो जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी स्टेट से, हायर एनर्जी लेवल से और हायर एनर्जी ऑर्बिट से जंप करता है किसी लोअर एनर्जी से एक पार्टिकुलर लोअर एनर्जी लेवल में और ऑर्बिट में किसी एच एटम के, हाइड्रोजन एटम के, तो पार्टिकुलर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इमिट होता है और फोटोन इमिट होता है, जिसे स्पेक्ट्रल लाइन भी कहा जाता है. तो व्हेन द इलेक्ट्रॉन ऑफ एच एटम जंप्स फ्रॉम एनी हायर एनर्जी level to a particular lower energy level, the radiation of a particular wavelength or frequency or photon or a spectral line is emitted, and we get a series of different spectral lines due to transition of electron of H atom from upper energy levels to a particular lower energy level called various spectral series as observed by different scientists. So to obtain these various spectral series of hydrogen atom spectrum, first of all we have to write Rydberg formula or Rydberg equation from Bohr's last postulate of atomic model. The frequency condition, that is Bohr's frequency condition, is h nu is equal to ei minus ef. Ei is the energy of the initial state and ef is the energy of the final state. So h nu is equal to ei minus ef. Therefore nu is equal to ei minus ef upon h. So frequency of the emitted photon or emitted spectral line is nu is equal to and ei minus ef upon h, and
After putting the values of EI and EF, that is, since EI is equal to minus RCH upon n square, using the relation of total energy of the revolving electron in nth circular orbit of H atom, En is equal to minus RCH upon n square, where R is Rydberg constant. Using this relation, we can write here for E1 for RCH Ni upon Ni square, minus for EF we can write minus RCH upon NF square. Then final term EF, that is माइनस माइनस, बीच में साइन है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो रिजल्ट में जो N2 जो है N मतलब NF पहले आ जाएगा और EI जो है वो NI वह बाद में आ जाएगा, तो अपॉन H से H कैंसिल हो जाएगा उस रिलेशन में. En इजकल टू, मतलब जब EI के लिए हम इसको इस EI के लिए लिखेंगे इस एक्सप्रेशन को, En वाला जो एक्सप्रेशन है En इजकल टू माइनस RCH अपॉन NI स्क्वायर, एंड फॉर फाइनल एनर्जी ऑफ final energy state in which the electron of H atom jumps from the higher energy state is the initial state, and final state in which electron jumps to the lower energy state. The lower energy state is corresponding to the energy corresponding to the lower energy state is EF, and the energy corresponding to the higher energy state is EI. So EF is equal to minus RCH upon NF square. Or using this relation, after substituting the values of EI and EF in this frequency, Bose frequency condition, nu is the frequency of the emitted photon or emitted spectral line, EI minus EF upon H. We will get RC H से H कैंसिल हो जाएगा, दोनों EI और EF दोनों टर्म में है और नीचे डिनोमिनेटर में भी है, तो RC 1 बाई, और जो EF वाला टर्म है एनर्जी फाइनल एनर्जी स्टेट मतलब लोअर एनर्जी स्टेट का, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि उसके आगे निगेटिव टर्म है, तो इसलिए NI पहले लिखना होगा, NF पहले होगा NF 1 बाई NF स्क्वायर माइनस 1 बाई NI स्क्वायर. NF जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वह लोअर एनर्जी स्टेट को, जिसमें कि चूँकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हायर एनर्जी स्टेट से, हाइड्रोजन एटम के हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी में जंप करता है, तो NI जो होगा वह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ऑर्बिट नंबर है किसके लिए, हायर एनर्जी लेवल के लिए, किसी हायर एनर्जी लेवल का, और NF है किसमें, किसी लोअर एनर्जी लेवल का, जो N इक्वल टू 1 2 3 4 डिफरेंस स्पेक्ट्रल सीरीज में डिफरेंट होगा. तो ये हो गया RC 1 बाई NF स्क्वायर माइनस 1 बाई NI स्क्वायर. दिस इज द फार्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ emitted photon or emitted spectral line in hydrogen atom spectra. Now we have to obtain Rydberg equation. So for we know the relation between a speed of light, frequency and wavelength is c is equal to nu into lambda. Therefore nu is equal to c by lambda. So we will get the Rydberg equation, nu is equal to c by lambda into is equal to RC 1 by NF. NF को N2 भी लिखा जा सकता है, NF को N1 भी लिखा जा सकता है, लोअर एनर्जी स्टेट की एनर्जी है, उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ऑर्बिट नंबर है, 1 बाई NF स्क्वायर माइनस 1 बाई NF स्क्वायर माइनस 1 बाई NI स्क्वायर. AI से लिखा जा सकता है RC, फाइनल जो एनर्जी स्टेट है वह लोअर एनर्जी स्टेट है, तो उसके लिए नंबर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N1 यूज कर सकते हैं और NF के जगह, और NI के जगह N2 यूज किया जा सकता है, जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और ऑर्बिट नंबर है हायर एनर्जी स्टेट कॉरस्पॉन्डिंग टू हायर एनर्जी लेवल. तो अब यहाँ पर इन LHS और RHS C और C कैंसिल हो जाएगा, तो thus we have obtained the formula for Rydberg equation. 1 by lambda is equal to R 1 by N1 square minus 1 by N2 square. This is the Rydberg relation or Rydberg equation, and this is equation number A. Suppose it is equation number capital A, and with the help of this equation we can find maximum wavelength or minimum wavelength corresponding to different spectral series, and also the Rydberg equation for that particular different or various spectral series. We will obtain the Rydberg equation for
various spectral series. So now first series is Lyman series. Lyman series. Lyman observed a series of spectral line in H atom, in the spectra of H atom, and Lyman series arises due to the transition of the electron of H atom from any higher energy level to first energy level, that is N1 is equal to Rydberg equation for Lyman series is 1 by lambda equals to R Rydberg constant. Value of Rydberg constant is R is equal to 1.097 multiplied by 10 to the power 7 per meter. Since the SI unit of Rydberg constant is meter inverse or 1 by meter, so Lyman series arises due to the transition of electron of H atom from any higher energy level to first energy level, that is for N1 is equal to 1. So Rydberg equation for Lyman series is 1 by lambda is equal to R capital R 1 by N1. अब N1 का क्या होगा, N1 इज इक्वल टू 1 रखना होगा, फिक्स है कि N1 फर्स्ट एनर्जी लेवल में, ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा किसी हायर एनर्जी लेवल से, N2 इज इक्वल टू 2 से 1 में, N2 इज इक्वल टू N2 का वैल्यू 3 हो सकता है, 3 से 1 में ट्रांजिशन होगा, दूसरा स्पेक्ट्रल लाइन N2 से N1 में ट्रांजिशन होगा तो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन इमिट होगा, फिर N2 से N3 से N1 में होगा तो N2 इज इक्वल टू 3 टू इनिशियल स्टेट 3 से फाइनल स्टेट N1 में जब होगा 3 to 1 में तो एक और स्पेक्ट्रल लाइन, 4 to 1 में होगा तो एक और स्पेक्ट्रल लाइन लाइमन सीरीज का। तो इस प्रकार से एक सीरीज ऑब्टेन होगा जिसके डायग्राम को हम लोग लास्ट में देखेंगे। सभी सभी स्पेक्ट्रल सीरीज को डिस्कस करने के बाद उसके लिए रिडबर्ग रिलेशन और मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ का स्पेक्ट्रल लाइन को ऑब्टेन करने के बाद तो 1 by lambda इज इक्वल टू रिडबर्ग इक्वेशन फॉर रिडबर्ग रिलेशन और रिडबर्ग इक्वेशन फॉर लाइमन सीरीज इज 1 by lambda इज इक्वल टू कैपिटल R 1 by N1 को वैल्यू फिक्स करना होगा 1 माइनस 1 by N2। N2 को हम अलग अलग वैल्यू होगा इसलिए N2 को फिक्स नहीं कर सकते हैं, इसलिए लेकिन जो फाइनल एनर्जी लेवल है फाइनल वह होगा कौन, N1 इज इक्वल टू 1 होगा, N फाइनल 1 होगा और इनिशियल कौन होगा 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज रिडबर्ग रिलेशन फॉर लाइमन सीरीज एंड फॉर हेयर वी हैव टेकन N1 इज इक्वल टू 1 फिक्स है एकदम कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन एकदम फर्स्ट एनर्जी लेवल में होगा ग्राउंड स्टेट में, और एंड N2 इज इक्वल टू कोई हो सकता है 2 से 1 में हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5.6 कोई भी हो सकता है, जो इनिशियल एनर्जी लेवल है वो कोई भी हो सकता है और फाइनल जो होगा वो 1 होगा, N1 इज इक्वल टू 1 होगा जो कि लोअर एनर्जी स्टेट के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और ऑर्बिट नंबर है। तो ये लाइमन सीरीज के लिए रिडबर्ग इक्वेशन हो गया। अब लाइमन सीरीज किस रीजन में पाई जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के लाइमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट रीजन में ऑब्जर्व की जाती है और यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिफरेंट बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में, खासकर स्टेट बोर्ड्स के 12 स्टेट बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में इससे पूछा जाता है और CBSE बोर्ड में भी 1 मार्क्स में भी प्रीवियस ईयर्स में इसे पूछा गया है। तो 1 by lambda इज इक्वल टू capital R 1 by 1 square minus 1 by N2 square. It is Rydberg equation for Lyman series. Now you can write Lyman series. Lyman series lies in the ultraviolet region, UV region, ultraviolet region that is wavelength having a shorter than 4000 angstrom, that is 4000 angstrom to 150 angstrom. This is the range of ultraviolet radiation. उसके बीच में ही होगा लाइमन सीरीज में जो स्पेक्ट्रल लाइन्स होंगे उनका वेवलेंथ। तो लाइमन सीरीज लाइज इन द अल्ट्रावायलेट रीजन दैट इज UV region of the electromagnetic spectrum of the electromagnetic स्पेक्ट्रम। तो लाइमन सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अल्ट्रावायलेट रीजन में पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और पूरा जो डिफरेंट वेरियस स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ एच एटम है ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है डिफरेंट बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में। नाउ वी हैव टू फाइंड shortest wavelength
and longest wavelength of the spectral lines of the Lyman series. Shortest wavelength in Lyman series, shortest wavelength of the spectral line in Lyman series is found due to transition of electron of H atom from the initial energy state N2 infinity to the ground state N1 इक्वल टू 1. बिकॉज यहाँ 1/N2 है, तो N2 का वैल्यू अगर लार्जेस्ट होगा तो 1/N2 का वैल्यू क्या होगा, लोएस्ट होगा. N2 लार्जेस्ट होगा, जैसे इंटू इन्फिनिटी रख दिया जाए तो 1/इन्फिनिटी का वैल्यू कितना होगा, 0 हो जाएगा. और यहाँ चूंकि 1/λ है और यहाँ 1/N2 है, तो N2 अगर लार्जेस्ट होगा तो 1/N2 का वैल्यू क्या होगा, 1/N2 का वैल्यू भी स्मॉलेस्ट होगा. तो उस सिचुएशन में लेमडा का वैल्यू भी स्मॉलेस्ट होगा. तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइमन सीरीज का ऑब्टेन होगा जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा N2 इक्वल टू इनिशियल एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी लेवल, जिसे N2 जिसे यहाँ पर इनिशियल एनर्जी लेवल क्या है, यहाँ पर फाइनल एनर्जी लेवल क्या है, N2 है. हायर एनर्जी लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग जो क्वांटम नंबर है N2 है, और लोअर एनर्जी लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग जो क्वांटम नंबर है वह N1 है. तो N1 इक्वल टू 1 तो पहले से ऑलरेडी है, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किसी हायर एनर्जी लेवल से N2 इक्वल टू N1 में होगा, दैट इज 1 में होगा, फर्स्ट एनर्जी लेवल में होगा. फिर N2 इक्वल टू 3 से N1 इक्वल टू 1 में होगा, फिर 4 से N2 इक्वल टू 4 से N1 में होगा. तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए, फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन फाउंड इन द लाइमन सीरीज, shortest wavelength of the spectral line in the Lyman series of the spectral line in the Lyman series putting N2 equal to N1 equal to 1, that is transition of electron will be taking place from the energy level at infinity, that is N2 equal to infinity to the ground state energy level, that is N1 equal to 1. So N2 putting N2 equal to infinity and N1 तो 1 है ही, N1 equal to 1 in the Rydberg equation, 1 given by equation 1 for Lyman series, we get 1 by, अब लेमडा की जगह लेमडा मीन रखना होगा, यहाँ पुट करना होगा इस इक्वेशन में. R इज द रीडबर्ग कांस्टेंट, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/N2 इक्वल टू इन्फिनिटी स्क्वायर, दैट इज R 1/1 माइनस 1/इन्फिनिटी 0, दैट इज कैपिटल R. R 1 माइनस 0 दैट इज 1, दैट इज R इंटू 1 R हो गया. देयरफॉर लेमडा मिनिमम इक्वल टू 1/R, क्योंकि 1/λ we get 1/λ mean is equal to capital R, therefore lambda mean is equal to 1/R, and value of R we know, Rydberg constant is 1.097 into 10 to the power 7, और ये हो जाएगा 1000, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1.097 में 3 प्लेस पर डिसिमल है, तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमिनेटर में, अपॉन 1097 मल्टीप्लाइड बाई 10 to power प्लस 7 नीचे में है रीडबर्ग कांस्टेंट का जो वैल्यू है, तो वह पावर ऊपर जाके -7 हो जाएगा. और इसे डिवाइड करेंगे तो 1097 से 1000 में, तो ये नहीं जाएगा, मतलब डिसिमल देना होगा, तब जाके 10,000 होगा, 1097 है. तो इस प्रकार ये वैल्यू, अब इसको डिवाइड करने के बाद नियरली 1097 से डिवाइड करें तो 9 into 7, 9 टाइम्स में 9 into 7 63, 9 into 7 63 plus 7 70 0 9, तो ये 9 टाइम्स 0.9112 भी हो सकता है लास्ट में, 11 इंटू 10 to the power -7 मीटर. अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 911 हो जाएगा, और 1000 से डिवाइड भी करना होगा तो 10 to power -7 इंटू 10 to power -3, 10 to power -3 पावर ऊपर चला जाएगा,
10 का पावर, तो -7 -3 तो एंगस्ट्रम में आ जाएगा। तो 9 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड करेंगे तो 911 एंगस्ट्रम, 912 भी हो सकता है क्योंकि डिसमल के 3 प्लेस तक लिया गया है और आगे बढ़ने पर तो 911 एंगस्ट्रम। ये लाइमन सीरीज में स्पेक्ट्रल लाइन जो इमिट होगा उसका मिनिमम वेवलेंथ होगा विच इज 911 एंगस्ट्रम। ये मिनिमम वेवलेंथ स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड इन द लाइमन सीरीज। अब हम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइमन सीरीज में उसके लिए भी ऑब्टेन कर लेंगे उसका वैल्यू। तो उसके लिए यहाँ पर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब स्पेक्ट्रल लाइन का कब ऑब्टेन होगा, जब स्पेक्ट्रल लाइन जब इलेक्ट्रॉन का एच एटम में ट्रांजिशन सेकेंड एनर्जी लेवल से दैट इज N2 इक्वल टू 2, दैट इज सेकेंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में होगा। तो फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ of the spectral line emitted in the Lyman series of the spectral line emitted in the Lyman series, putting N2 इक्वल टू N1 तो 1 है ही, फर्स्ट एनर्जी स्टेट में ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन होता है लाइमन सीरीज के लिए, और N2 इक्वल टू 2 रखना होगा एकदम 1 के क्लोजेस्ट। तो उस सिचुएशन में 2 रखने पर 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/2 स्क्वायर, तो ये वैल्यू जो होगा इसमें फिर 1/3 स्क्वायर होगा तो 1/9 हो जाएगा। तो 1/2 स्क्वायर माने 1/4, तो 1/4 से फिर N2 इक्वल टू 3 रखेंगे तो 1/9 हो जाएगा। तो उसका वैल्यू और घटता जाएगा, जैसे जैसे इन्फिनिटी की ओर जाएंगे तो वैल्यू घटता जाएगा। तो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू लेना होगा 1 के नज़दीक वाला, तो N2 इक्वल टू 2 N1 इक्वल टू 1। तो वी हैव 1/λ max इक्वल टू Rydberg constant R 1/1 square, N1 is 1 and N2, putting N2 इक्वल टू 2 in the Rydberg equation 1 for Lyman series। तो इमिटेड इन लाइमन सीरीज पुटिंग N2 इक्वल टू 1, जो हायर एनर्जी स्टेट का जो हायर एनर्जी स्टेट होगा उसको N2 इक्वल टू 2, N1 तो 1 है ही। तो हायर एनर्जी स्टेट 2 से सेकेंड एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट में N1 इक्वल टू 1 में ट्रांजिशन होगा तो मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगा। और 1 इसका वैल्यू भी हम ऑब्टेन कर लें, 1/λ max इक्वल टू कैपिटल R 1/1 दैट इज 1 माइनस 1/4 एंड 1 इंटू 1/4 इक्वल टू 3/4 दैट इज 3/4 into R 1/λ max इक्वल टू, therefore λ max इक्वल टू 4/3 R नीचे में आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 4/3 एंड R इज 1.097 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 7। अब 3 में 1.097 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 7 इंटू 3 21, रिमाइंडर 2 9 इंटू 3 27 और 2 9 29, फिर रिमाइंडर 2 और 3 इंटू 0 फिर 2 और 3 इंटू 1 दैट इज 3.291। we have 3.291 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 7 है डिनोमिनेटर में, तो ऊपर जाके 10 to the power -7 और ये हो जाएगा 4000/3291। अब चूंकि न्यूमरेटर लार्जर है डिनोमिनेटर से तो डिसिमल में नहीं होगा, तो 4000/3291 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power -7, और 3291 से 4000 में तो एक बार जाएगा तो 1 टाइम हो गया, तो 1 उसके बाद फिर करेंगे तो 1215 एंगस्ट्रम इसका वैल्यू 1215 एंगस्ट्रम या 16 एंगस्ट्रम आ सकता है। तो 1.215 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power -7 मीटर, और फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर दें और 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.215 इंटू 1000 दैट इज 10 to the power 3, तो 1215 और ये डिवाइड करने पर -7 और अपॉन 10 to the power 3 ऊपर जाके पावर न्यूमरेटर में -3 दैट इज पावर ऐड हो जाएगा 10 to the power -7 -3 दैट इज 10 to the power -10 दैट इज 1215 इंटू 10 to the power -10 मीटर, और 10 to the power -10 मीटर इज एंगस्ट्रम।
तो 1 to 1.5 एंगस्ट्रम ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हो गया, लेमडा मैक्स हो गया किसका, लाइमन. इन लाइमन सीरीज द spectral line emitted of the longest wavelength is lambda max is equal to 1 to 1.5 angstrom, that is 1 to 1.5 into 10 to power minus 10 meter. Now second spectral series of hydrogen atom spectra was observed by Balmer, and after his name this series of spectral lines is called Balmer series. So write down number 2 spectral series of H atom hydrogen atom spectrum is Balmer series, BALMER, Balmer series. And this series of a spectral line arises due to the transition of electron of H atom from any higher energy level to a particular level, that is NF is equal to or N1 is equal to 2, that is in second energy level. So Rydberg equation for Balmer series is 1 by lambda equals to capital R Rydberg constant 1 by, here N1 is equal to the quantum number of the lower energy level is N2 is N1 is equal to 2, सेकेंड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा किसी हायर एनर्जी लेवल से, N3 इक्वल टू 2 में, फिर N2 दैट इज हायर क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ हायर एनर्जी लेवल, तो N2 इक्वल टू 4 से N1 इक्वल टू 2 में फिर एक स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन होगा, फिर N2 इक्वल टू हायर एनर्जी लेवल 5 से N2 इक्वल टू 5 से फिर N1 इक्वल टू सेकेंड, N1 इक्वल टू 2 है तो 2 ही रहेगा किसी के लिए भी, ट्रांजिशन किसी भी हायर एनर्जी से होगा लेकिन हमेशा होगा N1 इक्वल टू, मतलब जो फाइनल एनर्जी स्टेट है वह सेकेंड एनर्जी लेवल ही होगा। तो N इक्वल टू 5 से N इक्वल टू 2 में जब ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन का तो फिर एक स्पेक्ट्रल लाइन होगा, फिर N इक्वल टू 6 से N इक्वल टू 2 में जब ट्रांजिशन होगा हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, तो फिर एक स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन होगा। तो इस प्रकार फिर एक स्पेक्ट्रल लाइन और रेडिएशन इमिट होगा, फोटोन इमिट होगा, दैट इज स्पेक्ट्रल लाइन इमिट होगा। सो Rydberg इक्वेशन ऑफ Balmer सीरीज कैन बी गिवन बाई 1 by lambda इक्वल टू कैपिटल R 1 by 2 स्क्वायर, where the final energy state is the lower energy state which is N1 is equal to 2 and N2 is equal to N2 square. Final N2 is the principal quantum numbers for higher energy levels, that is N2 is equal to, N2 can be taken as 2 at least 3, 4, 5, 6 and so on. And this is equation number 2, that is Rydberg equation for Balmer series. Here we have taken N1 is equal to 2 and N2 is equal to, N2 फिक्स नहीं है, 3 से 2 में होगा, 4 से 2 में होगा, 3, 4, 5, 6 डॉट। अब Balmer सीरीज ही एक ऐसा सीरीज है जो कि केवल विजिबल रीजन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन में पाया जाता है, और यह भी एक BVI इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है या 1 मार्क्स का क्वेश्चन कि Balmer सीरीज किस रीजन में, इन विच रीजन of electromagnetic spectrum Balmer series lies. It lies in visible region of electromagnetic spectrum. तो Balmer series, write down, Balmer series lies in the visible region of the electromagnetic spectrum of the electromagnetic spectrum, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और विजिबल रीजन का वेवलेंथ का रेंज क्या है, विजिबल रीजन का 4000 एंगस्ट्रम टू 7800 एंगस्ट्रम। 4000 एंगस्ट्रम is the wavelength of violet radiation, violet light, and 7800 एंगस्ट्रम is the wavelength of red light.
Now we have to find the longest wavelength of the spectral line emitted in Balmer series and the minimum wavelength and the minimum wavelength of the spectral line emitted in Balmer series. So for minimum wavelength, for the minimum wavelength of Balmer series can be obtained by the transition of electron from the higher energy level, that is initial energy state, N2 infinity, that is infinity, to the second energy level, that is N1 is equal to 2. So for minimum wavelength in Balmer series, minimum wavelength of the spectral line in the Balmer series of the spectral line emitted in Balmer series due to transition of electron from the higher energy level infinity to second energy level, that is n is equal to infinity to n is equal to 2. So minimum wavelength, one by putting n2 is equal to infinity in the Rydberg equation of given by equation number 2, for Rydberg equation given by Balmer series in equation 2. So 1 by, in place of lambda we can write 1 by lambda equals to r 1 upon 2 square, that is 1 upon 4 minus 1 by infinity, n2 is taken as infinity, 1 by infinity square, that is 1 by infinity, that is 0. So we get r under bracket 1 by 4 minus 0, that is r upon 4. Therefore lambda mean, मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन हो गया इससे, लैम्डा मीन इक्वल्स टू रिलेशन आ गया उसके लिए 4 अपॉन, रेसिप्रोकल ले लेंगे 4 अपॉन आर, और आर का वैल्यू मालूम है 4 अपॉन 1 पॉइंट Rydberg कांस्टेंट 97 इंटू 10 टू द पावर प्लस 7 इन द डिनोमिनेटर, एंड दैट इज वी कैन राइट इट 4000 अपॉन 1097, 3 प्लेस पर डिसिमल है डिनोमिनेटर में Rydberg वैल्यू का, Rydberg कांस्टेंट का जो वैल्यू है उसमें, तो 4000 अपॉन 1097 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर। अब 4000 में 1097 से डिवाइड करने पर हमें मिनिमम वैल्यू बामर सीरीज का ऑब्टेन हो सकता है, जो कि 4 बाई आर से, और आर का वैल्यू 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7। तो जब 4000 में 1097 से डिवाइड करेंगे तो पहले 3 टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, उसके बाद फिर और आगे प्रोसीड करने पर 3, 6, 4, 5 और 4, 6, 3, 6, 4, 5 इंटू 10 टू द पावर 3.645 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर, और फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1000 से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर 3.645 मल्टीप्लाइड बाई 1000, दैट इज 3645 इंटू, फिर डिवाइड करना होगा इसे, जब मल्टीप्लाई किए हैं 1000 से तो डिनोमिनेटर में भी उतना से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 10 टू पावर 1000 10 टू पावर 3 ऊपर जाके -3, तो -7 -3 -10, तो 3645 इंटू 10 टू पावर -10 मीटर, दैट इज 3645 10 टू पावर -10 मीटर इज एंगस्ट्रम, 3645 एंगस्ट्रम। This is the minimum value of the wavelength of a spectral line emitted in Balmer series, which is lambda mean is equal to 3645 एंगस्ट्रम, जो कि वायलेट लाइट का जो वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रम उससे भी कम है, मतलब थोड़ा ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में भी लाई कर जाएगा, ये मिनिमम वेवलेंथ इसका जो है इसका। अब मैक्सिमम वेवलेंथ को देखा जाए उसके लिए बामर सीरीज में स्पेक्ट्रल लाइन जो इमिट होता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से हायर एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल में, तो जो स्पेक्ट्रल लाइन का मैक्सिमम वेवलेंथ का स्पेक्ट्रल लाइन कितना होगा, तो उसके लिए Rydberg इक्वेशन नंबर 2 में N2 पुट करना होगा कितना 3, मतलब ट्रांजिशन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड इन बामर सीरीज कैन बी ऑब्टेन्ड when the transition of electron in each atom will take place from n is equal to n2 is equal to 3, that is third energy level, to second energy level. So we will get maximum value of the
wavelength of the spectral line emitted in Balmer series. So putting n2 is equal to 3 in equation 2 for the longest or largest wavelength in of the spectral line emitted in Balmer series. So putting for the longest wavelength in Balmer series. In the Balmer series we get putting n2 is equal to 3, n1 तो 2 है ही, तो 1 बाई लेमडा मैक्स हो जाएगा. इक्वेशन 2 में जो रीडबर इक्वेशन है बामर सीरीज के लिए 1 बाई लेमडा मैक्स कैपिटल आर 1 बाई 2 स्क्वायर दैट इज 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 3 n2 इजकल टू 3 तो 1/9 हो जाएगा दैट इज. और लेमडा मैक्स इक्वल्स टू आर 4 और 9 का एलसीएम 36 दैट इज 36 4 इंटू 4 से डिवाइड करेंगे 36 में 9 माइनस 9 से 4 36 में करेंगे 4 9 माइनस 4 दैट इज 5 दैट इज 5 आर अपॉन 36. देयरफॉर ये 1 बाई लेमडा मैक्स हो गया 1 बाई लेमडा मैक्स. देयरफॉर लेमडा मैक्स क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा इसलिए लेमडा मैक्स इक्वल्स टू 36 अपॉन 5 आर डिनोमिनेटर में हो जाएगा चलाएगा और 36 ऊपर और आर का वैल्यू हम जानते हैं 36 रीडबर कांस्टेंट का वैल्यू 5 इंटू 1.097 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 7 और इसे कैलकुलेट करने पर हम वैल्यू लेमडा मैक्सिमम का ऑब्टेन कर सकते हैं जो कि 6000 एंगस्ट्रम से ऊपर 6560 एंगस्ट्रम तक हो सकता है या 6560 से 65 एंगस्ट्रम तक भी हो सकता है. तो राइट डाउन 6563 एंगस्ट्रम दैट इज 10 टू पावर माइनस 3 मीटर फिर आएगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड करके हम वी कैन ऑब्टेन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड इन बामर सीरीज इज 6563 एंगस्ट्रम जो कि 6560 से 6565 एंगस्ट्रम के बीच हो सकता है आफ्टर कैलकुलेशन. तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ भी बामर सीरीज का हो गया 6563 एंगस्ट्रम और मिनिमम वेवलेंथ बामर सीरीज का कितना 3645 एंगस्ट्रम. और ये तो मैक्सिमम वेवलेंथ एकदम विजिबल रीजन में है जो कि 4000 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक का वेवलेंथ रेंज होता है विजिबल लाइट का तो उस रीजन में है 6563 एंगस्ट्रम जो कि मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड इन बामर सीरीज है. और जब मालूम हो रहा है लेमडा मैक्स लेमडा मीन तो हम फ्रीक्वेंसी भी मालूम कर सकते हैं. फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला है n इजकल टू और न्यू इजकल टू c अपॉन लेमडा. तो इस फॉर्मूला का यूज से c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड. तो ऐसा नहीं है कि वो लेमडा मैक्स लेमडा मीन होगा तो हम फ्रीक्वेंसी मालूम नहीं कर सकते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है. तो लेमडा मैक्सिमम होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा मिनिमम होगा और जब लेमडा मीन होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा मैक्स होगा. अंतर यही है लेकिन हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं इस फॉर्मूला से. ऐसा नहीं कि केवल वेवलेंथ ही ऑब्टेन होगा फ्रीक्वेंसी भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं या प्रॉब्लम में पूछा जा सकता है फ्रीक्वेंसी तो ऑब्टेन करने के लिए तो किया जा सकता है. Now third spectral series observed in the spectra of hydrogen atom is Paschen series. Write down Paschen series. And Paschen series arises due to the transition of electron of H atom from any higher energy level that is n2 equals to 4, 5, 6, 7 dot so and so on to the third energy level which quantum number is n1 equals to 3 or nf is equal to 3. So Rydberg equation for Paschen series is 1 by lambda equals to Rydberg constant capital R under bracket 1 by ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन का होगा लोअर एनर्जी स्टेट n1 इजकल टू जिसके लिए क्वांटम नंबर 3 है, क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है
ऑर्बिट नंबर, तो उसमें n1 इजकल टू 3 माइनस 1/n2 का वैल्यू चेंज करेगा, तो इसलिए n2 स्क्वायर यहाँ लिखना सही रहेगा। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3 विच इज रिडबर इक्वेशन फॉर पैसन सीरीज वेयर n1 जो लोअर एनर्जी लेवल है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा वह 3 होगा, और n2 का वैल्यू कम से कम एटलीस्ट फोर्थ एनर्जी लेवल से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू कम से कम 4 होगा, 4 से 3 में ट्रांजिशन होगा, एक स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगा, फिर 5 से 3 में ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन का, सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगा, फिर n2 इक्वल टू 6 से 6th एनर्जी लेवल से 3rd एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, 3rd स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगा, क्योंकि फिर से रेडिएशन इमिट होगा फोटोन के फॉर्म में। तो n2 इक्वल टू 4, 5, 6 एंड सो ऑन, 6, 7 एंड सो ऑन। दिस इज द रीडबर इक्वेशन फॉर पैसन सीरीज 1 by lambda r कैपिटल R इक्वल टू कैपिटल R 1 by 3 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर। नाउ पैसन सीरीज इज फाउंड इन द इंफ्रारेड रीजन, राइट डाउन। और इसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, या 1 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन में CBSE बोर्ड में भी प्रीवियस ईयर्स में। तो इसे भी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में, यह भी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसे बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, पार्टिकुलरली MCQs में। तो पैसन सीरीज फाउंड इन इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन दैट इज फार फ्रॉम रेड लाइट का वेवलेंथ 7800 एंगस्ट्रम होता है, उससे अधिक वेवलेंथ का जो लाइट रेडिएशन होगा उसे इंफ्रारेड रेडिएशन कहा जाता है, तो उस रीजन में ये पाया जाएगा। तो पैसन सीरीज फाउंड इन इंफ्रारेड रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम of the electromagnetic EM spectrum. Now we have to find shortest wavelength spectral lines emitted of the shortest wavelength in पैसन सीरीज। और यह एक प्रॉब्लम भी, इस वेवलेंथ को शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑब्टेन करने के लिए पैसन सीरीज में NCERT क्लास 12 बुक 2 NCERT टेक्स्ट प्रॉब्लम 12.3 भी है कि ऑब्टेन द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड इन पैसन सीरीज। तो इंफ्रारेड रीजन में ये पाया जाता है। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कब होगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पैसन सीरीज में स्पेक्ट्रल लाइन का तब इमिट होगा जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन n2 इक्वल टू, मतलब इनिशियल स्टेट जिसे n2 माना गया है, हायर एनर्जी स्टेट है, तो उसमें इन्फिनिटी से 3rd एनर्जी लेवल में या 3rd क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा। तो n2 इक्वल टू इन्फिनिटी रखना होगा इक्वेशन 3 में, रीडबर इक्वेशन फॉर पैसन सीरीज में। तो मिनिमम वेवलेंथ के लिए क्या होगा, 1 by lambda मीन इक्वल्स टू इन रीडबर इक्वेशन गिवन बाई 3 फॉर पैसन सीरीज कैपिटल R 1 by 3 स्क्वायर माइनस 1 by n2 कितना रखना होगा, n2 इन्फिनिटी रखना होगा, तब जाकर के 1 by इन्फिनिटी का वैल्यू 0 होगा, मिनिमम होगा। तो 1 by इन्फिनिटी स्क्वायर दैट इज कैपिटल R इंटू 1 by 3 स्क्वायर दैट इज 9, 1 by इन्फिनिटी 0, तो 1 by 9 माइनस 0 दैट इज 1 by 9, सो इट इज R इंटू 1 by 9 दैट इज R by 9। देयरफॉर lambda mean 1 by lambda mean इक्वल टू R by 9, देयरफॉर lambda mean इक्वल्स टू 9 अपॉन R, और फिर R का रिडबर कांस्टेंट का वैल्यू, R का वैल्यू 1.097 इंटू 10 to the power 7 पर मीटर इनवर्स दैट इज 9000, 3 प्लेस पर डिसिमल है 1.097 डिनोमिनेटर में, तो 9000 अपॉन 1097 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power -7 मीटर। अब 9000 में 1097 से डिवाइड करने पर हम इसका वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं पैसन सीरीज में जो मिनिमम वेवलेंथ होगा। और ये 1097 है, और ऊपर में न्यूमरेटर में कितना है, न्यूमरेटर में है 9000, तो ये 8 टाइम्स चला ही जाएगा, 8 टाइम्स फर्स्ट में, तो 8.204 और 8200 से 205 एंगस्ट्रम के बीच में लाई करेगा, तो उसके बीच में कोई वैल्यू लिख सकते हैं, तो दैट इज 8.204 इंटू 10 to the power -7 मीटर, और फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 8204 एंगस्ट्रम। तो नियरली
8200 एंगस्ट्रम के रेंज में है, जो कि मिनिमम वेवलेंथ है पासन सीरीज का, जो कि रेड लाइट का जो वेवलेंथ है 7800 एंगस्ट्रम, उससे क्या है, ज़्यादा ही है, 8204। तो 8204 एंगस्ट्रम है। तो इस प्रकार यह वेवलेंथ, रेड लाइट का जो वेवलेंथ है, विजिबल लाइट में रेड लाइट का वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होता है, तो उस वेवलेंथ से भी ज़्यादा है, तो मतलब इंफ्रारेड रीजन में ये मिनिमम वेवलेंथ भी है, तो इंफ्रारेड रीजन में ही है। तो 8204 एंगस्ट्रम हो गया मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द पासन सीरीज। और ये सॉल्यूशन भी हो गया एनसीईआरटी टेक्स्ट प्रॉब्लम 12.3 का, जिसमें कि पासन सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइन, पासन सीरीज में जो मिनिमम वेवलेंथ का स्पेक्ट्रल मिनिमम वेवलेंथ का स्पेक्ट्रल लाइन इमिट होता है, उसका वैल्यू कितना हो गया, 8204 एंगस्ट्रम, जो कि 8200 एंगस्ट्रम के रेंज में है। अब नाउ फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, द स्पेक्ट्रल लाइन of the longest wavelength emitted in Parsons series. So now we have to put n2 is equal to 4 for the longest wavelength of the spectral line emitted in Parsons series. So using equation 3, we have 1 by, using equation 3, that is Rydberg equation for Parsons series, 1 by lambda, और lambda max यहाँ lambda की जगह रिप्लेस करना होगा, lambda max r कैपिटल R 1 by 3 स्क्वायर माइनस n2 कितना पुट करना होगा, 4 पुट करना होगा, मतलब फोर्थ एनर्जी लेवल से थर्ड एनर्जी लेवल में जब हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, तो पासन सीरीज में जो वेवलेंथ इमिट होगा, पासन सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का स्पेक्ट्रल लाइन इमिट होगा। तो r अंडर ब्रैकेट 1 by 3 स्क्वायर माइनस 1 by 4 स्क्वायर, दैट इज कैपिटल R 1 by 9 माइनस 1 by 16, R 1 by 9 minus 1 by 16, that is LCM is LCM of 9 and 16 is 144, that is 9 से अब डिवाइड करेंगे 144 में, तो 16, और 16 से करेंगे 144 में, तो 9, that is, और 1 by lambda max is equal to R 7 by 144, that is 7R upon 144, therefore lambda max is equal to, अब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 144 अपॉन 7R, फिर R का वैल्यू कितना 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 रखा जाएगा। तो रखने के बाद इसका वैल्यू लैम्डा मैक्स का वैल्यू ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होगा, 18,752 एंगस्ट्रम के nearly 18,752 angstrom. This is the longest wavelength of the spectral line emitted in Parsons series 18752 angstrom, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कितना है, वह 8200 एंगस्ट्रम के रेंज में है, 204 एंगस्ट्रम, दैट इज अबाउट 8200 एंगस्ट्रम। तो ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है पासन सीरीज का। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कितना हो गया, उसका वेवलेंथ स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड वेवलेंथ ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लॉन्गेस्ट स्पेक्ट्रल लाइन emitted in Parsons series is 18,752 angstrom. Now next series of the spectral lines in the spectrum of observed in the spectrum of hydrogen atom is bracket series, which was observed by the scientist bracket 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 series, and this series, that is bracket series of spectral lines, arises due to the transition of the electron in each atom from any higher energy level to fourth energy level, that is n1 is equal to जो फाइनल एनर्जी स्टेट का और लोअर एनर्जी स्टेट का क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वह 4 होना चाहिए, n1 4, और n2 हाइयर एनर्जी लेवल और इनिशियल जो लेवल है तो उसका जो क्वांटम नंबर होना चाहिए
वो होना चाहिए एटलीस्ट N2 इक्वल टू 5, 6, 7 and so on. So we have to write Rydberg equation for bracket series, which is 1 by lambda equals to capital R, and the transition of electron in the lowest energy state in bracket series is fourth energy state, fourth energy level. N1 is equal to 4, so 4 square minus 1 by N2 square. Here N1 is equal to, we have taken N1 is equal to 4 and N2 is equal to at least 5, 6, 7 and so on. And this is equation number 4, which is the Rydberg equation for the bracket series, where we have taken N1 is equal to 4 energy level, lowest energy level in bracket series. N1 is equal to 4 and upper energy level, higher energy levels are at least 4, 5, 6, 7, that is dot dot so on. वो इन्फिनिटी तक होगा, N2 इन्फिनिटी तक होगा, 5, 6, 7 to infinity. Now bracket series also found in infrared region. लेकिन वेवलेंथ जो पासन सीरीज में जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ का जो रेंज है, मिनिमम वेवलेंथ एंड मैक्सिमम वेवलेंथ का रेंज, उससे इसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा. तो इसे कहा जा सकता है कि ब्रैकेट सीरीज फाउंड इन ब्रैकेट सीरीज इज फाउंड इन मिड इंफ्रारेड रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. सो राइट डाउन. इस पर भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है. ब्रैकेट सीरीज इज फाउंड in the mid infrared region of the electromagnetic spectrum, that is EMF spectrum. ब्रैकेट सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के मिड इंफ्रारेड रीजन में पाई जाती है. अब फिर ब्रैकेट सीरीज में जो स्पेक्ट्रल लाइन इमिट होगा, द स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड ऑफ द मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम वेवलेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो फॉर द मिनिमम द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ मिनिमम ऑफ द मिनिमम वेवलेंथ इमिटेड इन ब्रैकेट सीरीज, फॉर दिस वी हैव फॉर मिनिमम वेवलेंथ वी हैव इन इक्वेशन 4, दैट इज Rydberg इक्वेशन फॉर ब्रैकेट सीरीज, we have to put N2 is equal to infinity for the minimum wavelength of the spectral line emitted in the bracket series. So putting N2 is equal to infinity in equation 4, that is in Rydberg equation for bracket series, we have 1 by, in place of lambda we have to write lambda mean. 1 by lambda mean is equal to capital R, 1 by 4 square, that is 16, minus 1 by N2 is 5, N2 is infinity, that is infinity square minimum wavelength के लिए, that is R upon 16, R under bracket 1 by 16 minus 1 by infinity square, which is 0. So R into 1 by 16, that is R by 16. Therefore lambda mean is equal to रेसिप्रोकल हो जाएगा 16 अपॉन R, और R का वैल्यू मालूम है 1. कांस्टेंट का वैल्यू 1.097 इंटू 10 टू पावर 7. तो उस वैल्यू को रख करके लेमडा मीन को कैलकुलेट किया जा सकता है मीटर में और फिर एंगस्ट्रम में. तो लेमडा मिनिमम लगभग 14,500 नियरली 600 के रेंज में ऑब्टेन होता है. तो 14,575 एंगस्ट्रम, दैट इज 14,575 एंगस्ट्रम. दिस इज द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड इन द ब्रैकेट सीरीज. ब्रैकेट सीरीज में जो स्पेक्ट्रल लाइन इमिट होता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से किसी हायर एनर्जी लेवल से, तो मिनिमम वेवलेंथ के लिए तो इन्फिनिटी जो एनर्जी लेवल होगा, हायर एनर्जी लेवल इन्फिनिटी होगा, और इन्फिनिटी से फोर्थ एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन के हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में, तो इन्फिनिटी से जो हायर एनर्जी लेवल होगा इन्फिनिटी होगा, और लोअर एनर्जी लेवल फोर्थ एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से जो स्पेक्ट्रल लाइन इमिट होगा उसका वेवलेंथ मिनिमम होगा, और वह वेवलेंथ कितना होगा 14,575 एंगस्ट्रम, 14,575 एंगस्ट्रम का. एंड फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ, पुटिंग मैक्सिमम वेवलेंथ in bracket series in the spectrum of hydrogen spectrum, in the hydrogen spectrum
maximum wavelength of Bragg series is found when the electron in H atom jump from the jump from the fifth energy level, that is N2 is equal to 5, to fourth energy level. So putting N2 is equal to 5 in Rydberg equation for Bragg series given by 4, we have 1 by lambda. In place of lambda, we have to write lambda max equals to R Rydberg constant 1 by 4 square, that is 1 by 16, minus 1 by N2 is equal to 5, that is 1 by 5 square, that is 1 by 25. So now we have LCM of 16 multiplied by 16 and 25, which is LCM of after multiplying 25 into 60, we found 400. We obtain 400. So 400 divided by 16, that is 25, minus 25 divided by 400 divided by 25, that is 16, and this is the difference of 25 and 16, 9 R upon 9 capital R upon 400. Therefore we get lambda max 1 by lambda max 9 R upon 400, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा lambda max का वैल्यू 400 अपॉन 9 R, और कैपिटल R का वैल्यू फिर से एक बार Rydberg कांस्टेंट का वैल्यू 1.097 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 7, 10 to the power 7 ऊपर चला जाएगा तो -7 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। लैम्डा मैक्स होगा ब्रैग सीरीज का, जो कि 40,600 एंगस्ट्रम के क्लोज, दैट इज 40,590 एंगस्ट्रम, ये ऑब्टेन किया जा सकता है आफ्टर कैलकुलेशन 40,590 एंगस्ट्रम, इसका वैल्यू ऑब्टेन किया जा सकता है आफ्टर कैलकुलेशन। दिस इज द maximum wavelength of the spectral line emitted in brackets in the Bragg series, and which can be obtained by the transition of electron in H atom from fifth energy level, that is N2 is equal to 5, to fourth energy level N1 is equal to 4, and Bragg series is found in the mid infrared region of the electromagnetic spectrum, EMF spectrum. Now the last series of the spectral lines observed in hydrogen spectrum was observed by the scientist Pfund. So after his name, this series of spectral lines in hydrogen atom spectrum is called Pfund series. So write down, fifth series is in hydrogen spectrum is Pfund series, and Pfund series arises due to the transition of the electron of H atom from any higher energy level more than 5 to the particular energy level, that is N1 is equal to 5, that is fifth energy level. Principal quantum number having principal quantum number, energy level having principal quantum number N1 is equal to 5, which is the final energy state. And initial energy state may be 6 to 5, 6, and transition of electron will take place from 6 to 5, resulted to one spectral line. 7, again transition of electron from energy level, 7th energy level having higher energy level having quantum number 7 to 5, resulted to second spectral line, and so on इन्फिनिटी तक हो सकता है ट्रांजिशन। इन्फिनिटी से 5 में होगा तो मिनिमम वेवलेंथ फंड सीरीज का ऑब्टेन होगा, और 6 से एनर्जी लेवल 6 से N2 इक्वल टू 6 से N1 इक्वल टू 5 में ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन का, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का स्पेक्ट्रल लाइन इमिट होगा। तो फंड Rydberg इक्वेशन फॉर फंड सीरीज इज 1 by lambda इक्वल टू R Rydberg कांस्टेंट 1 by N1 इक्वल टू 5 स्क्वायर, क्योंकि
फिफ्थ एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा जो कि पार्टिकुलर एनर्जी लेवल है, और 6 से 5 में, 7 से 5 में। तो रिवर इक्वेशन फॉर फंड सीरीज इज 1 बाई लेमडा इजकल टू कैपिटल R 1 बाई 5 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 5, फाइनल इक्वेशन, रिवर इक्वेशन फॉर फंड सीरीज, वेयर वी हैव टेकन N1 इजकल टू 5 जो लोअर एनर्जी स्टेट है, लोएस्ट एनर्जी स्टेट इन लोएस्ट एनर्जी स्टेट इन फंड सीरीज इज lower energy state of the fund series is N1 is equal to 5 and N2 equals to at least 6, 7 dot to infinity। ये इन्फिनिटी तक होगा। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन इन्फिनिटी से फिफ्थ एनर्जी लेवल में होगा। तो मिनिमम वेवलेंथ का, दैट इज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ विल बी इमिटेड in that case in fund series. And fund series also lie in far infrared region. Fund series lies in, यह भी मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स का भी। फंड सीरीज लाइज इन द फार इंफ्रारेड रीजन। And the minimum wavelength of the spectral line emitted in this series can be obtained by the transition of electron from higher energy state infinity, that is N2 is equal to infinity, to the energy level having quantum number N1 is equal to 5. So putting N2 is equal to infinity in the river equation of for fund series, we can obtain the minimum wavelength of the spectral line emitted in fund series. तो N2 इक्वल टू इन्फिनिटी से जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा फिफ्थ एनर्जी लेवल में, तो मिनिमम वेवलेंथ का स्पेक्ट्रल लाइन इमिट होगा फंड सीरीज में। सो फॉर मिनिमम वेवलेंथ वी हैव 1 बाई लेमडा मीन। इन प्लेस ऑफ लेमडा वी कैन राइट R 1 बाई 5 स्क्वायर, दैट इज 25 माइनस 1 बाई N2 इज इन्फिनिटी स्क्वायर, दैट इज 1 बाई इन्फिनिटी 0। सो 1 बाई 25 माइनस 0, दैट इज 1 बाई 25 इंटू R, दैट इज R अपॉन 25। और लेमडा मीन रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1 बाई लेमडा मीन इजकल टू कैपिटल R अपॉन 25, R इज रिवर कांस्टेंट, सो लेमडा मीन इजकल टू 25 अपॉन R, दैट इज 25 अपॉन 1.096, वैल्यू ऑफ रिवर्स 1.097 इंटू 10 टू पावर 7 पर मीटर, वैल्यू ऑफ रिवर कांस्टेंट इज। और ये 25,025 ये होगा 25,000, 3 प्लेस पर डिसमल है रिवर कांस्टेंट में, 1.097, 25,000 अपॉन 1097 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -7 हो जाएगा, +7 है डिनोमिनेटर में, -7 मीटर। अब 25,000 में 1097 से डिवाइड करके और इंटू 10 टू पावर माइनस डिवाइड करने पर वैल्यू हम ऑब्टेन कर सकते हैं, और वह वैल्यू होगा मिनिमम के लिए 20। फिर एंगस्ट्रम में उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से न्यूमरेटर में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस सिचुएशन में हमारा वेवलेंथ जो है 22,000 एंगस्ट्रम से भी ऊपर का वेवलेंथ आएगा, मतलब नियरली 22,775, मतलब 22,780 एंगस्ट्रम के रेंज का, दैट इज 22,775 एंगस्ट्रम। मीटर से एंगस्ट्रम में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में दोनों करना होगा। तो लेमडा मीन हो गया ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन्ड कैन बी ऑब्टेन्ड इन फंड सीरीज ऑफ द वेवलेंथ 22,775 एंगस्ट्रम। एंड फॉर द मैक्सिमम वेवलेंथ द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन H atom, spectrum of H atom can be transition of electron will be from N2 is equal to 6, मतलब 6th energy level having quantum number N2 is equal to 6 to 5th energy level, that is N1 is equal to 5 में तो ट्रांजिशन होगा ही, जो पार्टिकुलर लेवल है 5, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होने से फंड सीरीज ऑब्टेन होता है एनी हायर एनर्जी लेवल से। तो फॉर मिनिमम मैक्सिमम वेवलेंथ वी कैन राइट in the Rydberg equation given by 5, lambda in place of lambda we can write 1 by lambda max equals to capital R 1 by 5 square 1 by 25, 5 square 25, and N2 is 1 by 6, that is 1 by 6 square 1 by 36.
So it is 1 by lambda max is equal to R under bracket 1 by 5 square, that is 1 by 25 minus 1 by putting n2 is equal to 6. तो मैक्सिमम वेवलेंथ का स्पेक्ट्रल लाइन इमिट होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, तो 1 by 6 स्क्वायर दैट इज 1 by 36, 1 by 5 स्क्वायर 1 by 25, तो 1 by 25 माइनस 1 by 26. अब 25 में 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 वी ऑब्टेन, और 1 by lambda max इक्वल्स टू R 25 इंटू 36 इक्वल टू 900. अब 25 से डिवाइड करेंगे 900 में तो 36 माइनस, अब 36 से 900 में करेंगे तो 25, तो 36 माइनस 25 अपॉन 900, दैट इज डिफरेंस ऑफ 36 माइनस 36 एंड 25 इज 11. सो और वी हैव 1 by lambda max equals to capital R multiplied by 11 by 900. Therefore lambda max equals to 900 upon 11, 900 upon 11 R, और R का वैल्यू फिर पुट कर सकते हैं 1.097 इंटू 10 टू पावर 7 मीटर इन्वर्स. तो ऊपर में मीटर इन्वर्स है तो ऊपर जाके मीटर हो जाएगा. तो और फिर एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमरेटर में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू जो मिनिमम वेवलेंथ हम लोग ऑब्टेन किए थे इसमें 22,775 एंगस्ट्रम का, इससे भी मोर वेवलेंथ जो है ऑब्टेन होगा, काफ़ी ज़्यादा, नियरली 3 टाइम्स से भी ज़्यादा, नियरली 75,000 एंगस्ट्रम के रेंज का, मतलब 74,536 एंगस्ट्रम, दैट इज 74,536 एंगस्ट्रम का वेवलेंथ, जो कि जो मिनिमम वेवलेंथ है फंड सीरीज में उसका 3 टाइम्स से भी ज़्यादा है. तो मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड इन फंड सीरीज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 74,536 एंगस्ट्रम, नियरली 74,540 एंगस्ट्रम. So it is lambda max is equal to, in lambda max, that is maximum wavelength of the spectral line emitted in fun series is 74,536 एंगस्ट्रम. इस प्रकार हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के में 5 स्पेक्ट्रल लाइंस, मतलब स्पेक्ट्रल लाइंस का 5 सीरीज का को ऑब्जर्व किया गया 5 साइंटिस्ट के द्वारा. तो उसके लिए रिडवर इक्वेशन और कैसे ऑब्टेन हुआ एक कोई पार्टिकुलर सीरीज, उसको डिस्कस किया गया, और मैक्सिमम वेवलेंथ स्पेक्ट्रल लाइन जो इमिट होगा किसी पार्टिकुलर सीरीज में और मिनिमम वेवलेंथ कितना होगा उसको भी कैलकुलेट किया गया थॉरली. इन लास्ट वी हैव टू demonstrate the energy level diagram of the different spectral series, of the various spectral series as observed in hydrogen atom spectrum. The energy of ground state, the energy of the lowest energy state, that is ground state, in the spectrum of H atom is E1 is equal to minus 13.6 electron volt. Energy, total energy of the second energy level in H atom is in the spectrum of H atom is E2 is equal to minus 3.4 electron volt. For third energy level, in total energy of the third energy level in the spectrum of H atom is E3 is equal to minus 1.5 electron volt. That of fourth energy level E4 is equal to minus 0.85 electron volt. That of the energy total energy of the fifth energy level, that is for n is equal to 5, principal quantum number n is equal to 5, E5 is equal to minus 0.54 electron volt EV, and for n is equal to 6, principal quantum number n is equal to 6, that is sixth energy level of H atom, in a total energy E6 is equal to minus 0.38 electron volt. And for infinity, that is for n is equal to infinity, that is for principal quantum number n is equal to infinity, that is energy level, that is the energy level at n is equal to infinity is E infinity is equal to 0, जो कि ऑब्टेन किया जा सकता है टोटल एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन H एटम
in the inner circular orbit is En is equal to minus 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इससे हम लोगों ने डिराइव किया था लास्ट वीडियो में माइनस ई एन इजकल टू माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर इन्फिनिटी रखा जाएगा एन इजकल टू इन्फिनिटी तो माइनस 13.6 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर दैट इज माइनस 13.6 अपॉन इन्फिनिटी दैट इज जीरो। मतलब इन्फिनिटी का मतलब है कि सबसे जो फारदेस्ट जो एनर्जी लेवल होगा वह एच एटम में वह उसकी एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी। तो उसके नीचे का जितना एनर्जी लेवल होगा, जैसे जैसे नीचे की ओर आएंगे, मतलब जैसे जैसे ग्राउंड स्टेट की ओर आएंगे तो वैसे वैसे एच एटम में रिवॉल्व करने वाला इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी का वैल्यू भी घटता जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी पर ही एनर्जी जीरो है। तो उसके बाद जो नीचे का जो लेवल्स हो गए, जो लोअर लेवल्स होंगे, उसकी एनर्जी क्या होगी, इन्फिनिटी का ही जीरो है तो निगेटिव होगी। तो जैसे जैसे ग्राउंड स्टेट की ओर आएंगे, मतलब लोअर एनर्जी लेवल की ओर आएंगे हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम में, तो वैसे वैसे उन सभी लेवल की एनर्जी जो है ग्रेजुअली घटती जाएगी। और सबसे जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल है उसकी एनर्जी कितनी है हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में, वह है E1 इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसे ऑब्टेन किया जाता है इस फॉर्मूला से फॉर फर्स्ट एनर्जी लेवल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 1, तो E1 हो जाएगा फॉर n इक्वल टू 1, E1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 13.6 अपॉन 1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज माइनस 13.6 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड फॉर n इक्वल टू 2 दैट इज सेकेंड एनर्जी लेवल के लिए E2 इक्वल टू, अब इसमें n की जगह 2 पुट किया जाए तो माइनस 13.6 अपॉन 2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज माइनस 13.6 अपॉन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड विच इज आफ्टर डिवाइडिंग 13.6 by 4 वी गेट माइनस 4 into 3 times 3.4 electron volt. And for n is equal to 3, that is for third energy level, we can put here n is equal to 3, that is E3 is equal to minus 13.6 upon 3 square electron volt. तो उसका वैल्यू आ जाएगा माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो E3 है यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है इस एनर्जी लेवल डायग्राम में, जो कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीट को रिप्रेजेंट करने के लिए यह डायग्राम को रिप्रेजेंट किया गया है। और इसी ढंग से फोर्थ एनर्जी लेवल में के लिए क्या होगा, n इक्वल टू 4 रखेंगे इसमें, En इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट फार्मूला में। तो E4 इक्वल टू फोर्थ एनर्जी लेवल हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम के फोर्थ एनर्जी लेवल की एनर्जी E4 इक्वल टू माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। उसी ढंग से n इक्वल टू 5 रखने पर उस फार्मूला में E5 जो फिफ्थ एनर्जी लेवल की एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी माइनस 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर n इक्वल टू 6 रखने पर E6 इक्वल टू माइनस 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। और अंत में n इक्वल टू इन्फिनिटी रखने पर इन्फिनिटी जो इन्फिनिटी काफ़ी एकदम लार्जेस्ट डिस्टेंस पर जो एनर्जी लेवल होगा हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस से, तो उसके लिए एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और जहाँ तक लाइमन सीरीज का सवाल है तो n इक्वल टू 2 सेकेंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी में ट्रांजिशन हुआ हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में, मतलब n इक्वल टू 1 में ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन n इक्वल टू 2 से 1 में हुआ तो एक स्पेक्ट्रल लाइन इमिट हुआ, जिसको डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट किया गया है। फिर n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1 में ट्रांजिशन हुआ, फिर सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन लाइमन सीरीज का मिला। फिर n इक्वल टू 4 से ट्रांजिशन हुआ n इक्वल टू 1 में, तो थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन। फिर n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 1 में ट्रांजिशन हुआ तो फोर्थ स्पेक्ट्रल लाइन। तो इसी ढंग से n इक्वल टू 6 से n इक्वल टू 1 में ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन का हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में, तो फिर फिफ्थ स्पेक्ट्रल लाइन भी ऑब्टेन होगा। तो इस ढंग से यहाँ पर 4 ट्रांजिशन को दिखाया गया है, 4 एनर्जी मतलब 4 एनर्जी स्टेट के बीच में ट्रांजिशन दिखाया गया है n इक्वल टू 5 टू n इक्वल टू 1 में। तो इस प्रकार मतलब 5 एनर्जी स्टेट, मतलब n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 5 के बीच में ट्रांजिशन से 2 से 1 में आया, तो 5 एनर्जी स्टेट के बीच में ट्रांजिशन से 4 स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व हुआ, लाइमन सीरीज हो गया। और फिर अब बामर सीरीज में क्या होगा कि सेकेंड एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होगा थर्ड एनर्जी लेवल से, तो एक स्पेक्ट्रल लाइन या एक फोटोन इमिट होगा, उसके बाद एक पार्टिकुलर वेवलेंथ का, जो फिर n इक्वल टू 5 से फोर से n इक्वल टू 2 में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ, तो फिर एक स्पेक्ट्रल लाइन दिखाई ऑब्जर्व हुआ, इमिट हुआ। और फिर n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 2 में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होने पर थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन। फिर n इक्वल टू 6 से n इक्वल टू 2 में ट्रांजिशन हुआ, तो फिर एक स्पेक्ट्रल लाइन और मिला। तो इस प्रकार 4 स्पेक्ट्रल लाइन। फिर n इक्वल टू 7 से n इक्वल टू 2 में ट्रांजिशन होगा तो फिफ्थ स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगा। तो यहाँ पर भी 4 स्पेक्ट्रल लाइन्स
ऑब्टेन हुए। इससे ज़्यादा भी होगा और भी होगा, इन्फिनाइट से भी होगा, इन्फिनाइट तक ट्रांजिशन होगा, तो इन्फिनाइट से ट्रांजिशन होगा सेकेंड ऑर्बिट में। लेकिन चार स्पेक्ट्रल लाइन का सीरीज को यहाँ दिखाया गया है। यह क्या होगा, बामर सीरीज होगा। जैसे कि लाइमन सीरीज में n=1 से n=2 से n=1 में एक स्पेक्ट्रल लाइन, n=3 से n=1 में सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन, n=4 से n=1 में फिर एक और स्पेक्ट्रल लाइन, n=5 से n=1 में तो फिर एक और स्पेक्ट्रल लाइन। तो इस प्रकार 4 स्पेक्ट्रल लाइन्स का यहाँ पर भी, फिर n=6 से n=1 में ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन होगा तो फिर एक और स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगा। अब पासन सीरीज में जो थर्ड सीरीज है स्पेक्ट्रल लाइन्स का, पासन सीरीज, उसमें ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन का किसी हायर एनर्जी लेवल n=4 से n=3 में, फिर n=5 से n=3 में होगा, फिर एक और स्पेक्ट्रल लाइन, फिर n=5 से n=3 में एक और स्पेक्ट्रल लाइन, फिर n=6 से n=3 में एक और स्पेक्ट्रल लाइन। इसी ढंग से n=7 से n=3 में थर्ड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा तो एक और स्पेक्ट्रल लाइन। तो यहाँ पर भी 4 स्पेक्ट्रल लाइन के सीरीज को रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये सीरीज हो गया, पासन सीरीज हो गया, जिसको कि साइंटिस्ट पासन में ऑब्जर्व किया। फिर अब n=4 में जो लोएस्ट एनर्जी लेवल है इसमें ब्रैकेट सीरीज के लिए, तो n=4 है और n=4 में n=5 से ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन का। तो हायर एनर्जी लेवल 5 से फोर्थ एनर्जी लेवल में तो एक स्पेक्ट्रल लाइन इमिट होगा, जिसको डाउनवर्ड एरो से दिखाया गया है। फिर n=6 से n=4 में होगा सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन, n=7 से फिर n=4 में होगा तो एक और स्पेक्ट्रल लाइन, फिर n=8 से n=4 में होगा एनर्जी लेवल में तो फिर एक और स्पेक्ट्रल लाइन। तो इस प्रकार स्पेक्ट्रल लाइन का एक और सीरीज होगा जिसको कि ब्रैकेट सीरीज कहा जाता है, जिसको कि इस सीरीज के ब्रैकेट सीरीज के स्पेक्ट्रल लाइंस को ब्रैकेट ने ऑब्जर्व किया। और फिर लास्ट में जब फंड सीरीज, तो फंड सीरीज में कम से कम इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होगा उसके लिए लोएस्ट एनर्जी लेवल है n=5, तो 6 से n=5 में ट्रांजिशन होगा तो एक स्पेक्ट्रल लाइन, n=7 से n=5 में ट्रांजिशन होगा सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन, n=7 से n=5 में ट्रांजिशन होगा तो फिर से एक स्पेक्ट्रल लाइन इमिट होगा। फिर ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। तो इसी ढंग से स्पेक्ट्रल लाइन इन्फिनिटी से n=5 में ट्रांजिशन होगा। तो इस प्रकार बहुत सारे स्पेक्ट्रल लाइंस का सीरीज ऑब्टेन होता है इस ट्रांजिशन से, n=इन्फिनिटी से लेकर के n=5 तक के बीच में जितने भी एनर्जी लेवल्स हैं, तो उन सभी से n=5 में जो मिनिमम एनर्जी लेवल है उसमें ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन का। तो इस प्रकार स्पेक्ट्रल लाइंस का एक सीरीज मिलेगा जिसको क्या कहेंगे, फंड सीरीज कहा जाता है। इस प्रकार पांचों सीरीज के स्पेक्ट्रल लाइंस को इस डायग्राम में रिप्रेजेंट, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन विच डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज आर डिमॉन्स्ट्रेटेड। और इसी के साथ इस एनर्जी लेवल डायग्राम के साथ ही डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज के एनर्जी लेवल डायग्राम हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम में, इसके साथ ही यह वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।